Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is for mathematics, class 3rd, chapter 4, measuring weight. This is our lecture number 1. Topics to be covered: introduction, conversion, exercise 4a. Now beta, our first topic is introduction of measuring weight. Introduction, measuring weight. To measure smaller weights, we use gram, and to measure bigger weights, we use kilogram. अंडरस्टूड बेटा, छोटी चीजों को छोटी चीजों के वेट के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? ग्राम। जब हम छोटी चीजों का वेट करते हैं, उनको मेजर करते हैं, तो हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? ग्राम। और जब बड़ी चीजों का हम वेट करते हैं और उनको मेजर करते हैं, तो हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? किलोग्राम। Understood? 1 kilogram kg equal to 1000 gram g. What does it mean? 1 kilogram में 1000 gram होते हैं. Okay, short form of kilogram is kg and short form of gram is g. Clear? Conversion. Part A. To convert kilograms into grams, we multiply the number of kilograms by 1000. Understood? जब भी हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट मीन्स चेंज करते हैं, तो हम किलोग्राम के नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, सी एग्जाम्पल. With the help of example, I will teach you the concept of converting kilogram into gram. Part 1. 9 kilogram. 9 into 1000 gram equal to 9000 gram. Understood beta? As I told you, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम. मैंने आपको बताया था कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. When we convert kilogram into gram, we multiply the number of kilogram by 1000. Here the number of kilogram is 9. So we will multiply 9 by 1000. So 9 multiplied by 1000 gram equal to 9000 gram. Understood? Here with 1000 there are 3 zeros. So given number is 9. हम 9 के साथ 3 zeros लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9000 gram. Okay, so 9 multiplied by 1000 gram equal to 9000. Clear? Now beta, in conversion I will explain you part B. In part B, to convert kilograms and grams into grams. First, convert kilograms into grams by multiplying with 1000 and then add the given number of grams to it.
अंडरस्टूड। जब बेटा हम किलोग्राम और ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो पहले हम किलोग्राम को क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग विद 1000, किलोग्राम के नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करके। देन वी विल ऐड दी ग्राम नंबर टू इट, तब हम उस आंसर में ग्राम के नंबर को ऐड कर देंगे। अंडरस्टूड? आई विल टीच यू दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सी एग्जाम्पल, 5 kilogram 860 gram equal to 5 multiplied by 1000 gram plus 860 gram. See here beta, here we have to convert 5 kilogram 860 gram into gram. हमें 5 किलोग्राम 860 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया है, एज आई टोल्ड यू, कि बेटा when you convert kilogram and gram into gram, first of all you will multiply the given number of kilogram by 1000. So here given number of kilogram is 5, तो हम 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Okay, then we will add the given number of gram to it. अब हमारा given number of gram क्या है? 860। अब हम इसमें 860 को ऐड कर देंगे। Clear? Now, first of all, you will multiply this 5 by 1000. Here in 1000, there are 3 zeros. ओके तो हम इस 5 के साथ 3 zeros लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 5000. So 5 multiplied by 1000 equal to 5000 plus 860 gram. So our answer will be 5860 gram. C. 5000 gram plus 860 gram equal to 5860 gram. Understood beta? Clear? Conversion. Part C. To convert grams into kilograms and grams, write last 3 digits as grams and the remaining as kilogram. Understood? जब भी हम ग्राम्स को किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम लास्ट 3 डिजिट वो हमारे क्या, वहां हम क्या लिखेंगे? ग्राम। लास्ट 3 डिजिट्स को हम ग्राम लिखेंगे और जो बच जाएंगे डिजिट वो हमारे क्या होंगे? किलोग्राम्स। ओके, आई टीच यू दिस कॉन्सेप्ट with the help of example. Example, part 1, 2060 gram equal to 2 kilogram 60 gram. 2 kilogram 60 gram. Understood? See here beta, as I told you, here with the given number gram is written. ठीक है, और ग्राम को आपने किस में चेंज करना है? किलोग्राम और ग्राम में। ओके, देन व्हाट विल यू डू? आप इन लास्ट के 3 डिजिट को क्या मान लोगे? ग्राम। ओके, रिमेनिंग विल बी किलोग्राम। तो कौन सा डिजिट बच गया आपका? 2। सो आवर आंसर विल बी 2 किलोग्राम 60 ग्राम. वन मोर थिंग आई टीच यू बेटा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ. व्हेन यू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम एंड ग्राम, so we will divide the given number by 1000. Why? क्योंकि हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की ओर जा रहे हैं. We are moving from smaller to bigger unit. Here with the given number
स्मॉलर यूनिट इज गिवन दैट इज ग्राम। हमने ग्राम को किस में चेंज करना है, किलोग्राम और ग्राम में। देन वी विल डिवाइड द गिवन नंबर बाय 1000। ओके, द मेथड विल रिमेन सेम। तब भी आप क्या करोगे, जो लास्ट के 3 डिजिट्स होंगे, ओके, वो आपके क्या होंगे, ग्राम, एंड रिमेनिंग विल बी किलोग्राम। क्लियर बेटा? एक्सरसाइज 4A, क्वेश्चन नंबर 2, चेंज इनटू ग्राम्स। अब हम एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन 2 नोटबुक में सॉल्व करेंगे। चेंज इनटू ग्राम्स। ओके, पार्ट डी, 7 kilogram. Here beta, with the given digit, with the given number in part D, unit kilogram is written. हमने इस किलोग्राम को किस में चेंज करना है, ग्राम में। ओके, when we change kilogram into gram, then we always multiply the given number by 1000। जब भी हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो हम गिवन नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। हेयर बेटा, किलोग्राम आपका बिगर यूनिट है और ग्राम आपका स्मॉलर यूनिट है। क्लियर बेटा? किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट एंड ग्राम इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ वेट। किलोग्राम बड़ा होता है और ग्राम छोटा होता है। क्लियर बेटा? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, in solution we will write formula. 1 kilogram equal to 1000 gram, then 7 kilogram equal to 7 multiplied by 1000 gram। 7 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 7000 ग्राम। Here in 1000 there are 3 zeros, तो हम 7 के साथ 3 zeros लगा देंगे, तो our answer will be 7000। So 7 multiplied by 1000 equal to 7000 gram. Understood? This is our answer, 7000 gram. Clear? Now beta, in exercise 4A, we will solve question number 2. Change into grams. Part D, 23 kilogram. Here with the given number 23, which unit is written, kilogram। हमें किलोग्राम को किस में चेंज करना है, ग्राम में। किलोग्राम बड़ा होता है और ग्राम छोटा होता है। ओके बेटा, व्हेन वी चेंज किलोग्राम इनटू ग्राम, वी ऑलवेज मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 1000। क्लियर बेटा? लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। 1 kilogram equal to 1000। Okay, now beta we have to multiply this 23 by 1000। अब हम 23 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। So 23 kilogram equal to 23 multiplied by 1000 gram। Now beta, when we multiply 23 by 1000, our answer will be 23,000। मीन्स हम इस 23 में ये वाली 3 जीरो और लगा देंगे। क्लियर बेटा? सी 23,000 ग्राम, दिस विल बी आवर आंसर। 23 multiplied by 1000 equal to 23,000। So our answer will be 23,000 gram। It's mandatory to write unit। आपको यूनिट जरूर लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे ड्यूरिंग टेस्ट और एग्जाम टाइम। ओके, नाउ इन एक्सरसाइज 4A, क्वेश्चन नंबर 2, चेंज इनटू ग्राम्स। पार्ट F, 9 kilogram 988 gram। Here beta, in part
F with the given numbers, two units are written, kilogram and gram. As I told you earlier बेटा, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जब भी गिवन क्वेश्चन में these both units are mentioned, जब भी गिवन क्वेश्चन में ये दोनों यूनिट मेंशन होते हैं, किलोग्राम एंड ग्राम, सो वी मल्टीप्लाई द किलोग्राम नंबर बाय 1000. ओके, हम किलोग्राम के नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी ऐड ग्राम नंबर्स टू इट, फिर हम उसमें ग्राम के नंबर को ऐड कर देते हैं. क्लियर बेटा? अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशन. सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे. इन सॉल्यूशन 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम. ओके, नाउ we have to multiply this kilogram number 9 by 1000. हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसमें इस ग्राम के नंबर को ऐड कर देंगे. सी 9 kilogram 988 gram equal to 9 multiply by 1000 gram plus 988 gram. क्लियर? जब आप 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, देन योर आंसर विल बी 9000. हियर गिवन नंबर इज 9. इन 1000 देयर आर 3 zeros, तो हम 9 में 3 0 लगा देंगे. सो 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल टू 9000. 9000 में हम 988 को प्लस करेंगे. आवर आंसर विल बी 9988 ग्राम. सी 9000 ग्राम प्लस 988 ग्राम, हम इसको ऐड करेंगे 9000 में 988 ग्राम. 0 plus 8 8, write 8 here. 0 plus 8 8, 0 plus 9 9, here 9, so we will write 9 here. Our answer is 9988 gram. We will write here 9988 gram. This is our answer. 9988 gram. Understood? Now we will solve exercise 4A, question number 3. Change into kilograms. Part A. 6000 ग्राम. बेटा हमें 6000 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है. ओके बेटा, when we change the gram number into kilogram, we always divide the given number by 1000. Why? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. ओके, इसलिए हम गिवन नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे. ओके, बट बेटा here we will not write formula 1 kilogram equal to 1000 gram. Here we will write 1000 gram equal to 1 kilogram. हम रिवर्स फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि हम गिवन नंबर को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं. Okay, in another way we can say that when we move smaller unit to bigger unit, we always divide the given number by 1000 in kilogram gram sums. Okay, let's start with the solution. 1000 gram equal to 1 किलोग्राम. ओके, अब बेटा हम 6000 को 1000 से डिवाइड करेंगे, बट व्हेन यू विल डिवाइड दिस 6000 by 1000, so in place of gram you will write here kilogram. Okay, see 6000 gram equal to 6000 kilogram divided by 1000. Understood?
हम यहाँ पर किलोग्राम लिखेंगे क्योंकि हम इस गिवन बिगर यूनिट लिखेंगे क्योंकि हम इस गिवन नंबर को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। नाउ बेटा आप क्या करोगे, जो ये लास्ट के 3 नंबर हैं इनसे पहले एक पॉइंट लगा दोगे। ओके, सी 6.000 किलोग्राम इक्वल टू 6 किलोग्राम। ओके, आपके ये जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे ये हो जाएंगे आपके ग्राम एंड रिमेनिंग विल बी किलोग्राम। तो आपका रिमेनिंग क्या है 6, तो 6 आपका क्या हो गया किलोग्राम। ओके, अंडरस्टूड। 000 ग्राम, वी विल नॉट राइट हियर 000 ग्राम क्योंकि जीरो की जो बाद की जीरो होती हैं उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। सो आवर आंसर विल बी 6 किलोग्राम। क्लियर। एक्सरसाइज 4A, क्वेश्चन नंबर 4, change into kilograms and grams. Part A, 7,777 gram. Beta, here with the given number smaller unit is written, that is gram. हमें इस ग्राम को किस में चेंज करना है, किलोग्राम और ग्राम में। ओके, here beta we will also divide the given number by 1000। यहां पर भी हम गिवन नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे। Why? Here also we are moving from smaller to bigger unit। यहाँ पर भी हम छोटे से बड़े यूनिट की ओर जा रहे हैं। जब भी हम छोटे से बड़े यूनिट की ओर जाते हैं, when we change the smaller unit into bigger unit, we always divide the given number। हम गिवन नंबर को हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड। हेयर वी विल डिवाइड द गिवन नंबर बाय 1000। व्हाई? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ओके, बट हेयर बेटा वी विल राइट रिवर्स फॉर्मूला। यहाँ पर भी हम उल्टा फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम गिवन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। Okay, now when we will divide this given number by 1000, तब हम क्या करेंगे, यहाँ ग्राम के प्लेस पर क्या लगा देंगे, किलोग्राम। ओके, सेम एज यू हैव डन इन दी प्रीवियस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, आप इन 3 नंबर से पहले एक पॉइंट लगाओगे। ओके, तो ये 3 नंबर जो ये लास्ट वाले हैं इस गिवन नंबर के, ये आपके हो जाएंगे ग्राम और रिमेनिंग दैट इज 7 ये आपका हो जाएगा किलोग्राम। सी 7,777 ग्राम इक्वल टू 7,770 किलोग्राम divided by 1000 equal to 7.777 kilogram. Okay, now these 3 digits जो हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, ग्राम और दिस 7 किलोग्राम। सी 7 kilogram 777 gram. This is our answer. 7 kilogram 777 gram. Understood? Today's homework is to exercise 4A. Question 1. Fill in the blanks. Parts A to F. Part A, 2 kilogram equal to multiply dash gram equal to dash gram. Understood? By using formulas. Okay, you have to solve these questions. फॉर्मूला यूज करके आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ओके,
Part B, 5 kilogram, 265 gram equal to dash gram plus 265 gram equal to dash gram. Part C, 9 kilogram, 167 gram equal to dash gram plus dash gram equal to dash gram. You have to solve these questions, these parts in your maths book carefully by using formulas. जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सारी चीजें अच्छे से समझाई हैं, आपको formulas, you have to keep formulas in your mind, then you have to solve these parts. Homework Part D, 4860 gram equal to dash kilogram dash gram. Part E, 2895 gram equal to dash kilogram dash gram. Part F, 6 kilogram equal to dash multiply dash gram equal to dash gram. Okay. Now beta, everybody understood? आपको होमवर्क बहुत ध्यान से करना है. You have to do homework carefully in good handwriting. और ये सारा होमवर्क आपको अपनी मैथ की बुक में करना है. क्लियर बेटा? थैंक यू.